सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको पता तो चल ही गया होगा मैं कहाँ पे आया हूँ। पीछे आप देख सकते हैं, गेस करो, टाइटल से पता चल ही गया होगा आपको। तो और मैं यहाँ पे आया हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम में, और मैं इसलिए आया हूँ शोरूम में क्योंकि ये सब आपको दिखानी है। और ये है रॉयल एनफील्ड ट्रेल्स 350। अभी इनके पास 500 अवेलेबल नहीं है, लेकिन 350 अवेलेबल है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ़ोटोज़ में आप जो बाइक को देख रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको फ़ोटोज़ में, उतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको सामने देखने में समझ में आएगा। जैसे मैंने बाइक को देखा, आई वॉज अमेज्ड, आई एम टेलिंग यू। मतलब सबसे पहले बता दूँ कि इंजन वाइज क्लासिक 350 का जो इंजन है वही इसके अंदर इंजन है। पहले एक बार आप बाइक देख लीजिए, तो ऐसी दिखती है बाइक। और आई होप मेरा कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा बाइक के लुक को। तो आपने बाइक तो देख ही लिया होगा, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आई हैव कमल विथ मी, राइट? कमल है आपका नाम? सो ही इज़ कमल, ही वर्क्स हियर विथ रॉयल एनफील्ड। एंड ये शोरूम जो है ना, ये डायरेक्ट कंपनी का शोरूम है। तो कमल विल बी टेलिंग अस कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। So yes, this is something very unique we have come up from Royal Enfield. So if you can look around, it is more dynamic and more focused towards more of touring, more of off-roading, more of riding, pure motorcycling, I must say. So the entire thing concept comes for a better suspension system. You know, if you can see, it's a solo riding only. There is no pillion seat over here, if you can observe. And this is meant for more of luggage oriented. More, you can add on too many luggage, and it is very convenient for you to rope it up. Generally, you can say. And this comes by default, right? This is not part of the extra accessory, right? This is not an additional accessory. Okay, so ये वाला जो है ना पार्ट, जैसे लगेज वगैरह बांधने के लिए पीछे कैरियर जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में नहीं लेना पड़ेगा। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आएगा, वो आपको बता दूंगा कि क्या क्या है, लेकिन ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट आपको बाइक के साथ मिलेगा। ठीक है जी। Yes, and looking after the silencer over here, this is a complete off-roading silencer, sir, just to make sure nothing comes in between when you are driving on. Especially in the deep waters when you go. Okay. So even under the extreme conditions, your drive would be completely smooth. Okay. So that's best thing. And if you can observe towards the handlebar over here, it is slightly uplifted compared to the old version. Okay. And also with the add-on anti-vibration bar, which helps you to drive this motorcycle very conveniently, even while sitting or even on standing on it. You have this thing, especially in Himalayan, Okay. where you can ride. Yeah, this one you're talking about, right? Yes, sir. Yeah. This one. So this. Yeah, I've seen this one on Himalayan. Himalayan as well. So just to make sure for any anti-vibration thing, this is one good thing we have got to do. Okay. That's And great. this will be part of extra accessory, right? Yes, sir. This is an additional accessory, but the thing will come up the continuous way. Okay, this one, right? Yes, Okay, yes. ठीक है। And even now, these knuckle guards are also an additional accessory again. And if you look at the build quality of these knuckle guards, this is very really strong. Nice, sir. This is really nice. The entire comes with an aluminium thing, and even though if it is an add-on thing, the impact it can resist. Okay. And If they're lightweight. if at all falls down, na, so it will not break, right? it won't break also, and it's lightweighted again. That's the best thing. And
This is an additional accessory they have come up especially for the trial. Okay, so this would be there part is- of extra accessories. Yes, and there is also an addition. The reason behind this is just in case if you're going on off-roading and you find these small stones or something hitting Right. up to the headlight. Right. So just to avoid that, this has been the additional accessory. And this is metal or This is the fiber. fiber? Okay. Yeah, to get that suspension thing. Right, right, So right. that was given, and this is also included as per the company only. So it is not an additional accessory. This Okay. comes directly as on the motorcycle itself. Okay. Talking about the tires, yes, there are something you need to look after. You get a better grip. These are the off-road tires, right? These are the off-road tires. Okay. Off-road or on-road, you always have a better grip. As these trials are coming up with a dual-channel ABS, so you have a better grip, a better braking system as well. And is this tubeless or it's? I don't think It's a it is tubed one because the spoke है ना Spokes are wheels. anywhere there, so you get Right. And off-road के लिए spokes is always good. off-road. Yes, especially if you're off-roading. Even the maintenance of the wheels, the spoke wheel is much convenient than the. That's correct. So that's the reason why. And- you get along to see the thumb guard over here. And This is some guard. you won't believe, when I looked at the bike very first time, I loved this one. This Exactly. is very strong, and if you look at they have started from very down from there. See, thanks. It's really large and huge. It can accommodate the entire engine as well, actually. All thanks to my camera, it can go even deep here. तो ये जो है ना इंजन कार्ड, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी आपको वीडियो में उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप सामने इसको देखोगे ना, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. और अब मैं कमल भाई को पूछता हूँ कि इसके ब्रेकिंग के बारे में. उन्होंने बताया कि इसमें ड्यूल चैनल ABS है, और पीछे भी ABS है, और सामने के टायर में भी आपको ABS मिलेगा, और डिस्क तो रहना है. और इसके अंदर आपको ट्यूब वाले टायर मिलेंगे. अब सामने वाला टायर की साइज़ है 90 बाई 90 19 इंच का. आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. तो 90 बाई 90 19 इंच का टायर है, 19 इंच का टायर है. पीछे का टायर के बारे में कुछ बताइए कमल भाई. It's an 18-inch tire at the rear, so it just comes like the usual classic or any other model, but it comes with an 18-inch tire again, and this composition comes around 110. 110 by 88. Oh, this is 110 by 80, 18 inch का, and the front one is 19. Right? 19 inch. Okay, and this is massive, bro. इतना strong है ये भी. Okay, so we have spoken about the brakes and tires and spoke wheels, and it is tube tire. Tube. Coming up with the chassis, they made up to be look really different, sir. That's a very bold move from Royal Enfield. Right. They've got a very fluorescent colors again, very bright. And this color suits, I'm telling you ना. Exactly. And especially it blends with silver, really nice. We got in 350, this is the one we have, and in 500cc we got green color one. Green color, right? Green color, and But with this an looks addition of chrome. okay. So that gives you a better look compared to Right. And this color is only on the chassis part, only right? on the chassis part, sir. और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पीछे का जो टेल लाइट का पार्ट है ना, ये लिया गया है GT एंड इंटरसेप्टर 650 का. जो पीछे का जो टेल लाइट है, सेम टेल लाइट आपको यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं. और इवन दी इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर थोड़े फ्लेक्सिबल दिख रहे हैं मेरे को. अगर बाइक गिर भी गई, कभी ऑफ रोड आप करते हो, बाइक अगर गिर भी जाती है तो ये टूटते नहीं है. और सामने का भी इंडिकेटर आप देख लो, यही इंडिकेटर आपको GT एंड इंटरसेप्टर पर मिलते हैं. देखो वहाँ पे खड़ी हुई हैं दोनों. यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं. ये सेम आपको ट्रेल्स पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं. सेम आपको नया वाली बाइक ट्रेल्स पे भी यही दिया गया है. ओके, तो मैं कमल के लिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास. वो ये है कि यहाँ पे भाई 48 लिखा है. सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. आई वाज थिंकिंग इट शुड बी सम प्रोडक्शन नंबर, जैसा हमने सिग्नल्स पे देखा है, पेगासस पे हमने देखा था टैंक के ऊपर. तो कमल भाई को पूछते हैं कि ये क्या है. तो हमें बताइए भैया कि क्या है ये. Yes, sir. So this is actually 48 resembles the year of when the Royal Enfield have changed its suspension to the swing arm suspension. Okay. So that's the birth of swing arm suspension in Royal Enfield, sir. So it was during 1948 these trials has been launched, and on this motorcycle only Johnny Britton, he has participated in the 6-day trial event. Okay. So and he is the winner among that. And I've seen that video also. At the Yes, time of yes, launch absolutely. last night, they were playing that video, na? Right. So So that is the resemblance. That's the story behind the 48. So 1948 is when this happened. So that's the reason इसको Yes, 1948 की जगह 48 यहाँ पे लगा दिया 48 गया. लगा, हाँ. Okay. और आपको कलर फिर से एक बार चैसी का कलर मेरे को बार बार दिखाने का मन करता है, पता, बिकॉज कलर जो चैसी का है ना बहुत ही अच्छा है. आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से. यहाँ पे देखिए, स्विंग आर्म से लेके पूरा जो पार्ट है चेसी का, इवन जो सेंटर स्टैंड है उसके ऊपर भी अलग कलर दिया है. अगर आप ऑफ रोड ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप मडगार्ड को देखोगे यहाँ पे,
तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसमें ऐड किया गया है ताकि ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, और ऑफ रोड करते हो पत्थर वत्थर जो भी अगर आप टच होता है इसके ऊपर तो इसकी वजह से मडगार्ड पे कुछ इशू आएगा नहीं। और मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी और कलर फिनिशिंग तो भाई देखने लायक है। और पीछे भी आपको मैं थोड़ा गैप भी आप देख सकते हैं, गैप भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और पीछे का जो मैं मडगार्ड आपको दिखाता हूँ इसमें काफ़ी अच्छा गैप दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा गैप यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो सस्पेंशन वगैरह है वो तो 5 स्टेप एडजस्टेबल वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बाइक को स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाइक कल रात को ही आई है, अभी पहला स्टार्ट हो रहा है मेरे सामने, तो आप देख सकते हैं। आपको मैं इसका स्पीडोमीटर है वो आपको दिखा देता हूँ पहले। और ये जो क्लासिक 350 का है वही स्पीडोमीटर है, इसके अंदर सिस्टम कंसोल। यहाँ पे आपको पेट्रोल का जो इंडिकेशन है, फ्यूल इंडिकेशन वो है। यहाँ पे ABS की लाइट दी गई है, और यहाँ पे आपको जो कि इग्निशन है बाकी सब सेम ही है। और यहाँ पे जो इंजन ऑन एंड ऑफ का बटन, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट कर दिया गया है। और किक तो है ही है, ये तो एनफील्ड की हर बाइक में दिया जाता है अनलाइक अदर बाइक्स। यहाँ पे हॉर्न वगैरह का ऑप्शन भी है। और यहाँ पे इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर भी आप दिखा देता हूँ। ये सेम इंडिकेटर है जो आपको GT 650 और इंटरसेप्टर पे मिलते हैं। तो अब इसको हम करने वाले हैं स्टार्ट। भैया आपके हाथों से स्टार्ट कर सकते हैं ना? वाह, हमने बाइक को स्टार्ट कर लिया है और आपको मैं साउंड भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी क्या थोड़ा वार्म अप होने दो। तो आपको मैं जल्दी से इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। भैया को मैं बोलता हूँ कि रेव करने के लिए हम 2 से 3 मिनट वेट किया है, थोड़ा रेव कर दीजिए भैया। हीट प्रोटेक्शन के लिए आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हीट का प्रोटेक्शन के लिए भी एक हीट शील्ड दी गई है। ये हीट शील्ड दी है ना? हाँ। तो अगर आपने कभी सोचा कि मैं फिलियन को बिठा लूँ, तो बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट देखा था, आई वाज गोइंग थ्रू ऑनलाइन, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पीछे वाला बैठेगा तो साइलेंसर इतना ऊपर दे दिया, कैसे होगा, पैर टच हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हीट शील्ड दी है ना, बड़ी दी है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक दी है। तो अगर कभी आप मन बनाओ ऐसा कि आपको बैठना है, किसी को बिठाना है, तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा आपको। वैसे है ये बाइक एक ही आदमी के लिए। तो बाइक का वॉकअराउंड हो गया, सब कुछ हो गया, फीचर्स, एक्सेसरीज़ आपने जो भी थे बाइक के ऊपर सब देख लिए हैं। एक्सेसरीज़ के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो के बाद में 1 या 2 दिन में आपके पास वीडियो आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये बाइक जो मैंने आपको दिखाई है 350 ट्रेल्स का प्राइस है 1,86,537 रुपीज़। तो ये है ऑन रोड प्राइस। और बुकिंग अगर आपको करना है तो 5,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट है। आपको ये शोरूम का डिटेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट 5,000 रुपीज़ है। और डिलीवरी का जहाँ तक मुझे यहाँ पे बताया कि 30 डेज़, 1 महीना लग जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो शोरूम में आइए, आप अपनी आंखों से देखिए बाइक को, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं वीडियो में जो दिखाया है वो एक आपको थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन आप सामने आइए यहाँ पे शोरूम में देखिए, तभी आपको बाइक समझ में आ जाएगी। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कहीं पे, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं।